Hey guys, Namaskar, Sat Shri Akal and Adab. My name is Vinayak Madan. You are watching Do It My Way. चलिए शुरू करते हैं. So hey guys, this video would gonna be very interesting क्योंकि this is my favorite topic and I guess this will be yours too. So in this video I'm gonna talk about my Jet Airways experience, the whole interview process, the steps which I have gone through. So please stick to the video and learn a lot of things. So in this video I'm gonna cover all the things which I observed and I think that you should understand and you should opt few of the things which I did in my interview, and I will also tell all the negatives which I observed in many of the candidates. After watching this video till the end, I am sure that you gonna be very sure about two things. Guys, the first doubt you can clear is that what attitude is required to attend any of the interview. The other question could be that is it really necessary or it is really important to know about the aviation before attending the interview. So guys, stick to the video and know about more and more answers and clearer doubts and go freely to the coming interviews. So best of luck. So guys, now the story begins. So guys, this all started when I was working with JW Marriott in the year 2015, and the coming 2 days were my holidays, and the very first holiday I had my Jet Airways cabin crew interview, and then coming next day I had my KFC supervisor interview. जो दोनों interview थे ये walk-ins थे and मुझे seriously इसकी कोई knowledge नहीं थी, mainly about Jet Airways. And guys, trust me, I had no interest in attending this particular interviews, but my family, my parents always insisted me and encouraged me to go to this particular interview. So guys, the previous night I was with my two buddies in Kasauli, and the night was going very good because we were on the Gedi Shedi and you know the Chandigarh people. So I told them that I had my interview. I discussed with them that guys, I have my interview tomorrow, and they asked me कौन सी. तो मैंने उनको बोला कि कुछ जेट एयरवेज कैबिन क्रू करके है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी. उन्होंने बोला बॉस जाना चाहिए तुम्हें. मैंने कहा ठीक है, ट्राई कर लेते हैं. तो मैंने कहा यार एक लफड़ा है. तो मुझे वो कहते हैं कि क्या हो गया, व्हाट हैपेंड. तो आई टोल्ड देम दैट बॉस मेरे पास कपड़े नहीं है, मींस कपड़े तो हैं बट मेरे पास बिजनेस सूट या कुछ नहीं है. तो कहते क्या प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अ बिग डील, लेट्स डू वन थिंग, वंस वी रीच टू चंडीगढ़ हम एक बार किसी के पास जाएंगे, फ्रेंड्स के पास, एंड वी विल बोरो द क्लोथ फ्रॉम देयर. द मोमेंट हम जैसे ही चंडीगढ़ पहुंचे, हम किसी के घर गए, वो मेरे फ्रेंड ही थे, ही वाज आल्सो वर्किंग इन होटल ओनली. सो उसके घर गए, हमने 2 बजे उसको कॉल किया कि हमें यार एक ब्लेजर चाहिए और हमें एक ट्राउज़र चाहिए. शूज़ मेरे पास होटल के थे. एंड ट्रस्ट मी गाइज, वो जो कपड़े थे ना, दे वर वेरी गुड, बट द प्रॉब्लम वाज वो बड़ा स्किन फिट थे. तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि यार ये तो लफड़े हैं. तो कहते बॉस मिल गए ना, शुक्र मना, देयर समथिंग इज बेटर देन नथिंग. ब्लेजर वाज ओके, बट द प्रॉब्लम वाज ट्राउज़र थोड़ा सा ऊंचा था. तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा उसको नीचे पहना. ठीक है, सो मुझे तो कुछ जुगाड़ तो करना ही था, राइट, बिकॉज आई वॉज रियली इंटरेस्टेड दैट टाइम, क्योंकि मुझे उन्होंने तो कुछ बता दिया था जेट एयरवेज के बारे में. तो आई वॉज रियली कीन टू अटेंड द इंटरव्यू. आई डिडंट केयर अबाउट क्या रिजल्ट होगा, क्या सीखूंगा क्या नहीं, बट मुझे जाना था. फिर जैसे हम उस घर के थोड़ा सा बाहर गए, मुझे याद आया, मैंने कहा यार अगर मैं बिजनेस सूट डालूंगा तो उसके लिए टाई तो ज़रूरी है, बिकॉज प्रोफेशनल लुक तभी आती है, अटायर तभी बनता है बिजनेस अटायर जब आप टाई भी साथ में डालो ब्लेजर के एंड ट्राउजर के. एंड गाइस गेस व्हाट, 8:30 आई बुक्ड माई कैब एंड at 9 o'clock I was at the venue. It was sharp 9 o'clock I was at the venue because I'm quite punctual person in these things. मैं कभी भी लेट नहीं जाता. पहले मैं चाहे आधा घंटा पहले चला जाऊँ वेन्यू पे, पर कभी भी लेट नहीं जाता. सो द वेन्यू वॉज पारस डाउनटाउन के मॉल के साथ में जीरकपुर में एक होटल था. उसका नाम 2-3 बार ही चेंज हो चुका है अभी, तो आई डोंट इवन रिमेंबर व्हाट वाज द नेम. सो आई गेस इट वाज अ गोल्डन प्लाजा और समथिंग. सो गाइज, अभी तक हमने क्या सीखा? फर्स्ट थिंग, दैट पीपल अराउंड यू शुड बी सो एनकरेजिंग दैट दे शुड पुश यू कि तू जा करके देख, क्या पता हो जाए. सो अगर मेरे साथ ऐसा ना होता, मैं आज जेट एयरवेज में एक्सपीरियंस लेके ना बैठा होता. क्योंकि उस टाइम मैं कसौली की वादियों में था, मैं अपने ही धुन में था कि मैं चाहता था कि मुझे कह दे कि छोड़ यार क्या करना है, बट दे वर सो एनकरेजिंग, दे आस्क्ड मी कि नहीं करते हैं. ठीक है. सेकेंड थिंग व्हाट वी लर्न, दैट वेयर देयर इज विल देयर इज ऑलवेज अ वे. गॉड हेल्प दोज
who helped themselves. हमने अपने ट्राई तो किया एटलीस्ट 2 बजे 3 बजे बहाने मारने को, हम दोपहर को भी बहाने मार सकते हैं, बट हमने रात को what we did, we tried our best. मेरे फ्रेंड्स ने हेल्प किया, we all went to get the stuff which was required for an interview, and there it is कि मैं इंटरव्यू वेन्यू पे पहुंच गया था विद ऑल माई बिजनेस अटायर, विद माई फाइल इन माई हैंड, सो आई वाज क्वाइट रेडी. सो गाइज आई एम एट द इंटरव्यू वेन्यू. चलो चलें. सो गाइज आई एम एट द इंटरव्यू वेन्यू, सॉरी आई वॉज एट द इंटरव्यू वेन्यू. मैं थोड़ा फीलिंग ले गया था कि जैसे ही मैंने एंटर किया, ट्रस्ट मी, मुझे लगा कि फिश मार्केट है, या मुझे लगा कि यहाँ पे कोई शॉपिंग के लिए लड़कियों के लिए खुला हुआ है, बिकॉज मैंने इतनी लड़कियां जिंदगी में नहीं देखी यार. तो मैं बहुत खुश हुआ. मैंने कहा यार कोई ना, अगर ना भी सिलेक्ट हुआ एटलीस्ट किसी को बताऊंगा तो सही जाकर कि मैंने कैबिन क्रू की बंदियां देखी हैं. सो जोक्स अपार्ट गाइज, आई वेंट देयर, आई आस्क्ड द रिसेप्शनिस्ट कि बॉस यहीं पे है इंटरव्यू जेट एयरवेज कैबिन का. ही सेड यस सर, प्लीज टेक द लिफ्ट एंड यू कैन रीच आउट देयर एट द सेकंड फ्लोर. व्हेन आई वेंट टू द सेकंड फ्लोर, आई सॉ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, huge number of candidates, huge number of boys and girls segregated into groups. मैंने सोचा यार क्या ही मजाक चल रहा है, इतना रश यार. मुझे लगा कि क्योंकि हमारा ना होटल्स में क्या होता है, होटल्स में इतने लोग नहीं होते. होटल्स में होते हैं लाइक 2 to 3 people at one time और 15-16 people at the max to the maximum. बट जेट एयरवेज में जब मैंने देखा, ऑलमोस्ट अगर आप मैं गेस भी मारूं तो 650-600 के करीब लड़के और 600 समथिंग लड़कियां थी. तो जब मैंने लड़कों को देखा, मुझे लगा कि यार मेरी तो बारी नहीं आएगी. एंड जैसे मैंने एंटर किया, वहाँ पे एक सीवी सबमिशन के लिए देयर वाज अ गाय हु वाज सीटेड, हिज नेम इज हर किरत, एंड वो ग्राउंड स्टाफ में था तब जेट एयरवेज में. उसके बाद उसने जेट एयरवेज कैबिन क्रू में भी काम किया, एंड नाउ ही इज़ इन एयर इंडिया. उसके बाद वहाँ पे हमारी थोड़ी फ्रेंडशिप हुई, तो उसने मेरा CV लिया एंड ऑल, एंड ही आस्क्ड अस टू सिट और शुड वेट आउटसाइड. तो वो 10-10 या आई डोंट रिमेंबर 10-10 या 15-15 के ग्रुप में लोगों को बुला रहे थे. एंड फाइनली गाइज वो टाइम आ ही गया जब हमें बुलाया गया. हमें 15-15 के ग्रुप में बुलाया गया. उन्होंने बोला कि एक लाइन बना लो एंड रिमूव योर शूज़ और शर्ट के स्लीव्स ऊपर कर लो सो दैट दे कैन सी द मार्क्स. मुझे कुछ नहीं पता था क्या होना क्या नहीं होना, मैं जस्ट इंजॉय कर रहा था वो टाइम. तो मैंने शूज़ उतारे अपने एंड दे चेक माई हाइट एंड इट वॉज 173 सेंटीमीटर्स एंड 170 वॉज द रिक्वायरमेंट. एंड उसके बाद वेट देखा, BMI वॉज क्वाइट परफेक्ट. सो आई वेंट देयर एंड ट्रस्ट मी, अभी ध्यान से सुनना, जो मेरे सामने एक लड़का था, जो मेरे साथ आगे एक लड़का था, ही स्टार्टेड वो भीख मांगने लग गया लिटरली. उनसे नो मैम प्लीज़, मैम प्लीज़, मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी, मैं बहुत ही उसके लिए बहुत ही सोच कर आया था कि मेरा हो जाएगा एंड ऑल. वो लिटरली पैरों में गिर गया था. ही वॉज गोइंग इन फ्रंट ऑफ देम फॉर अ जॉब विच वॉज रियली रिडिकुलस टू सी. क्या परेशानी होगी, बट दिस इज नॉट द वे टू गेट अ जॉब गाइस. सो मैंने सोचा कि यार अगर मेरा ना हुआ तो मैं भी ऐसे करूँगा, अगर हो गया तो ठीक है. तो मजाक कर रहा हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करता कभी भी. तो यू शुड ऑलवेज हैव योर ऑरा एंड यू शुड ऑलवेज हैव योर एटीट्यूड इन योर लाइफ. सो गाइस जैसे मेरी टर्न आई, उन्होंने मुझे बुलाया कि अपना हाइट चेक वेट चेक करो, एंड उन्होंने मेरे हाथ देखे तो इट वाज ऑल फाइन एंड दे सेड फाइन. एंड उन्होंने मेरे डार्क सर्कल्स देखे बिकॉज आई वाज वर्किंग होटल्स एंड उसमें नाइट शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट यू हैव टू डू वीकली और ऑल फोर्टनाइटली. सो तब मुझे बोला कि सॉरी विनायक, यू आर परफेक्टली फाइन बट द प्रॉब्लम इज यू हैव डार्क सर्कल्स. आई सेड ओके फाइन. मेरे दिल में कुछ तो हुआ कि यार एवरीथिंग इज़ फाइन बट डार्क सर्कल्स के तब नहीं मुझे निकलना. मैंने बोला उस एक बार भी, मैंने कहा चलो ट्राई तो करूँ, एटलीस्ट उनको कंपेल करूँ, एटलीस्ट रिक्वेस्ट करूँ. मैंने भीख नहीं मांगी, मैंने बड़े स्टैंडर्ड वे से भीख मांगी कि उनको एटीट्यूड भी लगे, उनको ये भी लगे बंदा भूखा है. मैंने कहा मैम आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बट दे जस्ट वांटेड टू मेक यू क्लियर वन थिंग दैट आई एम ऑलरेडी वर्किंग विद JW Marriott चंडीगढ़ एट पिकार्डी चौंक. इन दैट वी हैव टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ शिफ्ट्स दैट इंक्लूड्स मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून. सो आई थिंक सो इट इज समथिंग which is very temporary thing and I know that after getting into proper schedule and getting a proper sleep I can remove these things. So she said I'm sorry Vinayak, it's not possible. So मेरा दिमाग में कुछ हुआ कि यार नहीं यार गलत है. तो मैं स्लोली शूज़ डालने गया पीछे, तो मेरा ध्यान था उनकी कॉन्वर्जेशन पे. तो द लेडी हु वाज सीटेड दूसरी जगह पे पूछा स्लो आवाज़ में कि हाउ इज़ ही. ठीक है, तो द लेडी हु टुक माई इंटरव्यू शी सेड कि ही इज़ ऑल परफेक्ट बट द प्रॉब्लम इज़ डार्क सर्कल. उसने कहा कुछ नहीं होता, बुला ले. ठीक है, जैसे उसने ये मैसेज दिया, द लेडी हु टुक माई इंटरव्यू, उसने मुझे बुलाया तक नहीं. मेरा ध्यान वहीं था, मैं लेसेस तो बांध नहीं रहा था, मैं जस्ट उसके खेल रहा था. मुझे पता था आवाज़ आएगी. तो मैंने जैसे उसने बोला बुला ले, मैं साथ में उसके पास ही चला गया सीधा. तो मैंने कहा यस मैम,
तो वो कहते ओहो वेरी एनर्जेटिक। मैंने कहा मैम आई वाज लिसनिंग टू यू ओनली। देन शी स्टार्टेड स्माइलिंग एंड शी सेड योर नेम इज़ इनायत। मैंने कहा नो मैम, मेरे घर वालों ने मेरा नाम तो विनायक रखा है। तो बिकॉज आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, अगर इंटरव्यू में भी जाता हूँ ना तो आई ट्राई टू क्रैक जोक्स एंड मेक कंफर्टेबल द अदर पर्सन, आई मेक कंफर्टेबल सो दैट वो बंदा थोड़ा पॉजिटिव हो जाए। तो मैंने उसको बोला कि माय नेम इज़ विनायक मदान। सो शी सेड ओके ओके, आपका फॉर्म इनायत के नाम पे आया। इनायत वाज अ गर्ल हु वाज स्टैंडिंग आउटसाइड, तो उसका फॉर्म विनायक के नाम से था। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गया। तो फिर उन्होंने फॉर्म लेके आए मेरा एंड ऑल, मेरे से बात की। They asked me 2 to 3 questions and they asked me what you do, blah 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 and all. So I gave them answers and they said asked me to wait. So guys, next was the interview of written English test. इंग्लिश टेस्ट बहुत ईजी होता है, जेटेविस का बहुत ही ईजी था। सॉरी, नाउ द कंपनी डजंट एग्जिस्ट, राइट। मेरी शुरू से आदत रही है, नॉट ओनली जेटेविस, मैं जब भी एग्जाम देने जाता हूँ मैं 1.5 घंटे 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में करके निकल जाता हूँ। तो मेरे पेरेंट्स पहले से बहुत नाराज रहते थे कि भाई अगर तू पूरा ध्यान से पेपर देगा ना तो नंबर ज़्यादा आएंगे। तो मेरी आदत है कि मैं चीटिंग नहीं करता, आई नेवर ट्राई टू कॉपी समवन। जितना मुझे आता है दिल से आता है, write that particular paper and come back. So उस सेम वैसे हुआ, my dad was in the meeting and मैंने पापा को बताया कि मेरा इंटरव्यू है अभी, उसका रिटन एग्जामिनेशन। सो ही सेड फाइन, टाइम आराम से करके आना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जब दिया, मैंने 5 मिनट में, आधा में 15-20 मिनट दिए, तो मैंने लिटरली 5 मिनट्स आई टुक एंड जस्ट रोट एवरीथिंग एंड जस्ट केम आउटसाइड। मैंने पापा को कॉल किया, मैंने कहा पापा हो गया। तो पापा कहते यार तू फिर भाग आया। मैंने कहा नहीं, मुझे आता था, मैंने सब कुछ कर लिया एंड आई एम डैम श्योर मेरा हो जाएगा। फिर गाइस उन्होंने एज यूजुअल हमें बोला कि गाइस वेट फॉर दैट, आपके रिजल्ट्स आएंगे। इसके बाद उतने टाइम में हमारा लंच टाइम भी हो गया था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मेरा एटीट्यूड देखना उस टाइम कि आई वॉज द ओनली पर्सन जिसने उनके साथ एक टेबल छोड़ के बैठ के लंच किया, उसी होटल में पैसे खर्च। मेरा दिल बहुत बड़ा ही नो, ठीक है। तो मैंने जितना भी खर्चा किया, आप मुझे थोड़ा सा दे सकते हो तो प्लीज़ दे देना, ठीक है। तो मैंने वहीं पे लंच किया बिकॉज आई वाज नॉट इंटरेस्टेड टू गो आउटसाइड एंड वो गर्मियों के दिन थे, तो आई वाज नॉट रियली इंटरेस्टेड टू गो आउटसाइड एंड आई वाज क्वाइट न्यू टू दैट पर्टिकुलर जीरकपुर प्लेस एंड आई वाज नॉट अवेयर कि कहाँ क्या मिलेगा। सो आई थॉट कि यहीं पे पैसे खर्च के वहीं बैठूंगा, क्या पता सिलेक्ट हो जाऊँ। तो दे वर ऑल्सो लुकिंग एट मी कि भाई एक ही बंदा बैठा है और आराम से खाना खा रहा है। सो उसके बाद हमें गैदर किया, हमें बताया कि इंग्लिश टेस्ट में कौन कौन क्लियर हो चुका है एंड दे वर लाइक 15-20 गर्ल्स एंड 2 guys we were and including me. So एक और लड़का था, his name is Padam I guess and he's also already a part of my Facebook friends. So हम गए, हम ना ऐसे ना टेबल पे बैठे थे, उस पे चेयर्स पे, तो लड़कियां बैठी थी। हमें नहीं पता था कि वी आर द ओनली गाइस, ठीक है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं ना थोड़ा सा ऐसे फ़नी थोड़ा सा टाइम कर लेता हूँ कि थोड़ा सा टाइम पास हो जाए। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा सुन, कहता यस। मैंने कहा यार भाई एक बात पूछनी थी। कहता क्या हुआ। मैंने कहा यार मुझे ना सारी गोरी गोरी टांगें दिख रही हैं, मुझे ना लड़के की टांग नहीं दिख रही कहीं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार लड़कियाँ दिख रही। कहता हाँ भाई 15 लड़कियाँ आई गेस, तो हम ही 2 लड़के हैं। मैंने कहा वाह यार। तो मैंने कहा हमारा तो कंपटीशन ही नहीं है इसका मतलब। तो कहता हाँ बस गाइज हमें जीडी के लिए बुलाया गया। मैं टॉपिक एंड ऑल एवरीथिंग आई विल टेल लेटर बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्सटेंड दिस वीडियो मोर। सो उसके बाद हमें बिठाया गया, उस पर मैंने क्वेश्चन पुट किया जीडी में ही इंटरव्यूअर से कि ये क्वेश्चन सही नहीं है एंड द क्वेश्चन वाज रियली चेंज। आई स्वेयर टू गॉड कि ये सच्ची बात है, झूठ नहीं है। एंड आई वाज आफ्टर लिसनिंग टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैंने पुट किया, उन्होंने मुझे बोला कि विनायक यू कैन सिट इन द मिडल एंड यू कैन जस्ट टेक द कॉपी एंड नोट डाउन ऑल द पॉइंट जो भी कैंडिडेट्स बोलेंगे एंड एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू यू हैव टू स्पीक आउट ऑल द पॉइंट्स एंड यू जस्ट नीड टू कम टू कंक्लूजन। आई सेड ओके मैम एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट। द ओनली गाय हु वाज लेफ्ट अमंग ऑल द गर्ल्स, सो आई वाज क्वाइट लकी, राइट। सो द नेक्स्ट राउंड वाज एक आमना सामना था एक राउंड का। तो मैंने बोला कि यार, मैंने अपने फ्रेंड्स वही लड़के से पूछा, हरकीरत से, मैंने कहा भाई एवरीथिंग इज़ डन। कहता नहीं यार एक और इंटरव्यू। मैंने कहा यार कितनी इंटरव्यू लोगे यार। मैंने कहा यार इतने तो शादी के लिए जो सोहरा और ससुर है वो नहीं इतना चेक करते, आप तो यार कुछ ज़्यादा ही इंटरव्यू नहीं ले रहे। तो कहता है यार भाई ऐसे ही इनका सिस्टम है। तो मैं मतलब वेट कर करके बंदा थक जाता है। आई वॉज एग्जॉस्टेड, ट्रस्ट मी। 9 बजे का आया, अराउंड 5:30 बज गए थे। तो लास्ट राउंड आया, तो मतलब एक सर थे, एक मैम थे, एंड आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम। दे आस्क्ड मी पीआई, इट वाज अ पीआई इंटरव्यू। सो उन्होंने मुझे बोला कि आर यू रेडी टू स्विम और डू यू नो हाउ टू डू स्विमिंग। सो आई टोल्ड देम दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ हाउ टू स्विम, बट ट्रस्ट मी आई विल नॉट
I will not die and I will try to save myself, don't worry. So he started smiling because see, the one thing is whenever you are not aware of and you're not sure about how to answer, just add humor into it. ये नहीं कि हंसने लग जाओ पागलों की तरह, but आपको थोड़ा सा humor add करना है so that the other person, the interviewer should get something from you कि ये बंदा positive है. अगर कोई भी negative situation आएगी in the flight, you can handle it very well. So this is the way you have to handle these type of questions, right? Afterwards, after 5 to 10 minutes, I was told that Vinayak is selected, and there were 5-6 girls who are selected. And I was so happy, I was so proud that I was the only guy who got selected among 700 to 600 people. And trust me, I never went with an intention to get selected, but trust me, when you have a positive attitude, when you never expect out of anything from you, you always get selected, guys. So मैंने फिर अपने पापा को कॉल किया and all. My dad was in the meeting and literally what happened, he came out from the meeting and he just picked my call. मैंने कहा पापा हो गया. कहते क्या हो गया? मैं कहा सिलेक्शन हो गया. तो कहते वाह, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड होता है ना जब आपको इतनी खुशी होती है ना. सो माई डैड वो सो हैप्पी. मैंने कहा आप क्या कर रहे थे? कहते आई वाज इन द मीटिंग. मैंने कहा पापा हाथ जोड़ के विनती है कि आप प्लीज़ अपनी जॉब में छोड़ देना, मेरी लाखों में सैलरी नहीं है, मैं सबको नहीं पाल पाऊंगा. तो वी स्टार्टेड लाफिंग. सो गाइस दिस ऑल हैपेंड इन चंडीगढ़. चलो अगर आपको गुड़गांव की बात सुनिए क्या हुआ गुड़गांव में, चलो मेरे साथ चलो. चलो आप, मैं आ गया. सो गाइस जब गुड़गांव का दिमाग में आया तो मैंने सोचा यार मैं रहूँगा कहाँ पे. तो पहले मेरे छत की याद है कि मैंने कहाँ रहूँगा. तो मेरा एक फ्रेंड था रवि करण, हु वाज वर्किंग विद मी इन JW Marriott एंड ही वाज आल्सो वर्किंग इन कतार एयरवेज दैट टाइम एंड आल्सो ही वाज वर्किंग इन एयर इंडिया दैट पर्टिकुलर टाइम. सो मैंने उनको कॉल किया. मैंने कहा भाई ऐसी ज़रूरत है तो मैं आपके पास रह सकता हूँ एक दिन के लिए, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो लोकेटेड इन ही वॉज ऑल्सो रिसाइडिंग इन गुड़गांव ओनली. सो इट वॉज लाइक 2 to 3 minutes डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टिल द वेन्यू. सो मैं वहाँ पे जब इंटरव्यू देने गया तो मुझे मेरी बारी आई जब, तो देवर 2 people who were sitting in the room. एक सर थे, एक मैम थे. सो मैंने उनके पास बैठा. तो अभी ध्यान से सुनना क्या हुआ कि मुझे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा. इट वॉज आउट ऑफ द बॉक्स. दे आस्क्ड मी, सर ने मुझे पूछा कि विनायक फ्रॉम वेयर यू केम टू नो दैट जेट एयरवेज की इंटरव्यू है. इंग्लिश में पूछा, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ. सो आई आंसर्ड कि सर मुझे ना जीमेल पे मेल आया था. तो मैं आगे बोलने लगा था. ही started speaking. He said कि how you came to know about the interview I asked you. आपकी कंपनी है जेट एयरवेज, आपको कैसे पता लगा? उन्होंने आपको पर्सनल मेल किया. सो आई जस्ट रिक्वेस्टेड सर दैट सर जस्ट लेट मी कंप्लीट, मैं अभी जस्ट बोल ही रहा था, यू जस्ट स्टार्टेड स्पीकिंग. सो मैम सेड या प्लीज़. तो मुझे उस टाइम एक ना लड़कियों के लिए इज्जत थोड़ी सी बनी कि यार हाँ थोड़ा सा सुना तो सही उन्होंने मुझे. तो मैंने बोला कि मैम कहते हैं हाँ बोलो विनायक. तो मैंने कहा मैम द प्रॉब्लम वाज कि आई हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू मेनी ऑफ द थर्ड पार्टी पोर्टल्स लाइक timejobs.com and all. They sent me every time this particular mail कि यहाँ इंटरव्यू है and the venue as well. So okay and that particular sir said sorry to me at that particular point of time and he said I'm really sorry, apologize, sorry. मैंने कहा it's okay sir, it's not about sorry, but I was about to say, I was about to clear that. So मैं वैसे भी मेरे में ना पेशेंस नहीं है. तो मैं ना मुझे कहते ओके फाइन विनायक वेट. मैंने कहा सर मैं सिलेक्ट हो गया कि नहीं? नो कहते वेट. मैंने कहा अच्छा ठीक है. तो मैं जैसे थोड़ा सा बाहर गया तो जैसे ना एकदम से जैसे दरवाज़ा खुलता तो मुझे लगता था कि मुझे बुलाने आए. तो मैं ऐसे वैसे बाहर खड़ा हो गया. तो मैं वेट करूँ. एक बंदा आया, ही वाज वर्किंग इन जेट एयरवेज. सो ही सेड कि विनायक प्लीज़ कम विद मी. मैंने कहा सर क्या हो गया, कुछ बुरी खबर है? कहते नहीं. कहते फ़ोटो दे. मैंने कहा क्या हुआ? कहते दे ना. मैंने कहा सर हुआ क्या पहले बताओ. कहते सिलेक्ट हो गया भाई तू. मैंने कहा सर अब तो नहीं कुछ है. मैंने ये नहीं, मैं खुश नहीं हूँ. मैंने कहा सर अब कहीं और तो नहीं जाना, बैंगलोर या चेन्नई? कहते नहीं विनायक दैट्स ऑल, बट इसके बाद अभी मेडिकल्स हो गए. तो सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट माय जेट एयरवेज एक्सपीरियंस, द इंटरव्यू प्रोसेस. आई होप दैट यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो. दैट हमें हमारी विल होनी चाहिए. वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे. एंड हमारे अराउंड जो पीपल होने चाहिए, दे शुड बी इनकरेजिंग, दे शुड गिव यू मोटिवेशन. एंड थर्ड थिंग इज कभी भी इंटरव्यू में जाओ, ऑलवेज हैव एन एटीट्यूड कि सीख कर आना है, चाहे जो मर्जी हो जाए. हाँ हो ना हो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट. हर टीम जीतती नहीं है, एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है. सो ऑलवेज थिंक कि भाई सीखना है, दैट्स ऑल. यही मोटिव होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे. आई नो कभी कभी आपके पैसों के क्लैशेस होते हैं, कभी कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, बट ट्रस्ट मी ऑन दैट दीज इंटरव्यूज आर नॉट टाइप ऑफ इंटरव्यू जब आप बर्डन लेके चलो सिर पे.
चिल्ड आउट रहना। जैसे मैं गया था ना कि लड़कियां देख आएंगे, वो ये नहीं कि लड़का लड़की छेड़ने लग जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप आराम से जाओ, चिल्ड आउट जाओ, इन्वायरमेंट देखो कि क्या हो रहा है एंड ऑल, जस्ट गेन एक्सपीरियंस गाइज। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, माई JTVZ experience. I hope you liked it. If you liked it, please subscribe, like and comment. Please, it's a request because it gives me motivation and I just feel like making more and more good stuff. So thank you guys. Wish you stay at home, stay safe, and we will fight the corona very soon, very fast. Thank you.